Hello students, how are you? Welcome to new series Easy English with Jagjeet sir। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਈਜ਼ੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਰਡਸ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਮੀਨਿੰਗ, ਵੀ ਜਿਸ ਵਾਕ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਟ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਰਡਸ ਦੈਟ ਕਨਵੇਜ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਵੈਨ ਪੁੱਟ ਟੂਗੈਦਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਨਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਨਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਜਾਂ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਉਹ ਬਣਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਦਿਖਾਵਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜੋੜ ਲੱਗ ਕੇ, ਯੋਜਕ ਲੱਗ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕਲਾਉਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਅਸਰਟਿਵ ਜਾਂ ਡੈਕਲੇਰੇਟਿਵ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਿਵ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਧਾਰਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਔਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਯਾਨੀ ਵਿਸਮਕ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ, ਚਿੰਤਾ, ਦੁੱਖ, ਅਫਸੋਸ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਨਿਕਲਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਲੌਜ਼ਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਰਟਿਵ ਯਾਨੀ ਡੈਕਲੇਰੇਟਿਵ, ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ, ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਅਸਰਟਿਵ ਜਾਂ ਡਿਕਲੇਰੇਟਿਵ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ। ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੈਟ ਸਟੇਟ ਫੈਕਟਸ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਔਰ ਥਾਟਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਥ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਐਂਡ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਅਸਰਟਿਵ ਜਾਂ ਡੈਕਲੇਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਯੋਜਕ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਯੋਜਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰਟਿਵ ਜਾਂ ਡੈਕਲੇਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ SV condition, यानी subject and verb condition. Our first sentence is the boys are running, यानी जो मुंडे है वो दौड़ रहे हैं। इसे जो सब्जैक्ट है, जिदा असी सब तो पहले अपनी बेसिक क्लासेस विच सब्जैक्ट एंड प्रेडिकेट की गल करते हैं, जिस बारे असी गल करें, जिस करता बारे, जिस मेन बंदे बारे असी गल करें, उसनूं असी सब्जैक्ट कहने हैं। इस दे नाल रिलेटेड जिन्ना भी सेंटेंस बाकी बचता है असी उसनूं प्रेडिकेट कहने हैं। एक हुंदा है विशा, एक हुंदा है विधेय। इसनूं असी इंग्लिश कहने सब्जैक्ट एंड प्रेडिकेट। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜੈਕਟ। ਦ ਬॉयज़ यानी मुंडे, द बॉयज़ ए सब्जेक्ट है और जो वर्ब यानी जो क्रिया है जिस कोई कार्य हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है,
आर रनिंग या आर स्विमिंग। इस विच रनिंग, स्विमिंग, टॉकिंग, थिंकिंग, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਬ ਨੇ, ਇਹ क्रिया शब्द ने। सिंपल सेंटेंस है, इस विच असर्टिव, डेक्लेरेटिव एक तरह की स्टेटमेंट है कि मुंडे दौड़ रहे हैं, मुंडे स्विमिंग कर रहे हैं, एक सब्जैक्ट है, एक वर्ब है। हुण असीं देखते हाँ इस विच SVO कंडीशन है, एक सब्जैक्ट है यानी करता, एक वर्ब है यानी क्रिया यानी एक्शन वर्ड, और एक ऑब्जैक्ट है जिहड़ा काम करता है, जिस चीज़ बारे असीं गल करदे वो सब्जैक्ट हुंदा है। सबजैक्ट का प्रभाव जिस चीज़ उत्ते पैंदा है असीं उसनूं ऑब्जैक्ट कहने हैं। अध्यापक बच्चों नूं पढ़ांदा है, इट मीनस जो टीचर है वो करता है, वो काम करने वाला है। जो ऑब्जैक्ट है उससे जिस उत्ते उसका प्रभाव पै रहा है, इफेक्ट पै रहा है, वो जो स्टूडेंट्स ने वो उसका ऑब्जैक्ट है। इस विच असीं कंडीशन देखते हैं सब्जैक्ट, वर्ब एंड ऑब्जैक्ट। यानी दीदार सिंह ब्रॉट यानी लियाया, ब्रॉट ए न्यू बाइक। इस जो दीदार सिंह है वो सब्जैक्ट है, जो वर्ब है वो ब्रॉट यानी लियाया, और आ न्यू बाइक ए ऑब्जैक्ट है, वो वस्तु है जिस उत्ते जो करता है, जो सब्जैक्ट है वो प्रभाव पा रहा है। असीं इत्थे पहली बार देखिया भी एक तो सब्जैक्ट है यानी द बॉयज़, दीदार सिंह, द ओशन, जसपाल सिंह, आए, ए जिन्ने भी सब्जैक्ट है, करता है। ਜਦੋਂ ਵਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਬ੍ਰੌਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਬ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਵਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਡ ਜਾਂ क्रिया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ, ਵਰਬ ਔਰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦ ਓਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡੀਪ, द स्काई इज़ ब्लू। जो ब्लू है, जो डीप है, ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ। द ओशन इज़ डीप। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਓਸ਼ਨ। ਜੋ ਵਰਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਜ਼, ਐਮ, ਆਰ, ਵਾਸ ਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਰਬ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਡੀਪ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ SVA। ਇੱਥੇ S ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ, V ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, और A ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ एडजंक्ट्स। एडजंक्ट्स ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ऐसे वर्ड्स जो मीनिंग कंप्लीट करते हैं परंतु वाक का जरूरी हिस्सा नहीं होंगे। इस दा मतलब है भी उस दा काम है वाक नूं आके पूरा करना, सेंटेंस नूं आके कंप्लीट करना, और उस विचों मेन भूमिका नहीं निभानी, उसनूं असीं कहने आ एडजंक्ट। सेंटेंस लिखा है जसपाल सिंह रीच्ड यस्टरडे। जसपाल सिंह सब्जैक्ट है, वर्ब है, एक्शन वर्ड है, रीच यानी पहुँच गया, और यस्टरडे ए समय बारे है। जे ना भी हुंदा इस वर्ड ने समय बारे इशारा करके अपना काम खत्म किया और साइड ते हो गया। तो मतलब भी इसने एक सेंटेंस की मीनिंग नूं कंप्लीट किया, परंतु जे असीं इसनूं हटा भी दईए तो इसका मतलब है भी ये एसेंशियल या ज़रूरी पार्ट नहीं। जिस तरह की सब्जैक्ट या वर्ब या ऑब्जैक्ट किसी सेंटेंस के जरूरी पार्ट होंगे है, इस तरह जो एडजंक्ट है वो वाक का हिस्सा ना होंदा होया भी अपना काम कंप्लीट करता है, उस मीनिंग नूं कंप्लीट करता है। जो अगली कंडीशन है साडी सिंपल असर्टिव डेक्लेरेटिव सेंटेंस की, वो है ASVO। असी इत्थे SVO ते पढ़े सी, सब्जैक्ट है, वर्ब यानी क्रिया है, ऑब्जैक्ट है, परंतु यही जो एडजंक्ट है जो पहले लग जाता है, जो उसका कार्य किसी सेंटेंस को कंप्लीट करना होंदा है, वो जो एडजंक्ट है वो पिछे लगने की बजाय पहले लगता है। जिदा असीं लिखते हैं आई मैट माई क्लासमेट कबीर, आई मैट माई फ्रेंड जसपाल। जो असीं टूडे लगाने हैं, टूडे लास्ट विच भी लग सकता है, इसका मेन पार्ट नहीं है, परंतु एक मैसेज कंप्लीट करके इसका जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। हुण इत्थे टूडे, इत्थे यस्टरडे या टूडे लास्ट विच भी आ सकता सी, परंतु असी एडजंक्ट नूं पहले लगाता। टूडे आई मैट माई क्लासमेट कबीर, अज मैं अपने पुराने दोस्त कबीर नूं मिलिया, अज मैं अपने क्लासमेट कबीर नूं मिलिया। इस तरह से देखा यह सारे सिंपल सेंटेंसिस है जिन्होंने असर्टिव या डेक्लेरेटिव कहते हैं, जिन्हां विच कोई फैक्ट है, कोई ओपीनियन है और कोई थॉट है, यानी एक सिंपल मैसेज दे के इन्हां दा काम पूरा हो जाता है। असीं इसनूं सिंपल सेंटेंस सधारण वाक कहने आ। उस तरह जो फंक्शन के तौर पर दसदे हाँ असीं कहने असर्टिव या डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। इस तो बाद असीं इसे सेंटेंस का दूसरा रूप करते हैं, एक सिंपल सेंटेंस सी, सिंगल सेंटेंस सी, सिंगल मैसेज सी। हुण असीं कंपाउंड की गल करते हैं, जिस दो क्लाउजेज मिलके एक सेंटेंस नूं कंप्लीट मैसेज के तौर पर पूरा करते हैं। सो वी वर टॉकिंग अबाउट असर्टिव सेंटेंस और डेक्लेरेटिव सेंटेंस।
सेंटेंस दैट स्टेट फैक्ट्स ओपीनियन और थॉट्स, यानी इस तरह के सेंटेंस जो कि एक मैसेज विच कोई फैक्ट देंगे, कोई ओपीनियन या विचार देंगे या कोई थॉट्स देंगे है। असी कर चुके हैं सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंसिस। हुण असी देखते हैं जो कंपाउंड है, कंपाउंड का मतलब है भी दो अलग अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंसिस है, यानी उसनूं क्लाउजेज यानी वाकांश भी कह सकते हैं। उस तो बाद वो जिहड़ा है किसी न किसी कंजंक्शनस नाल यानी योजक के नाल जुड़े हुए हैं। जिद्दां असीं कहने आ कंपाउंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसिस टू इंडिपेंडेंट क्लाउजेज विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी एक तरह के समान योजका नाल जोड़न वाले वर्ड्स नाल जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट फीलिंग वेल सो आई डिसाइडेड टू टेक लीव। Here we have two independent sentence means clauses. Number one, I am not feeling well. It is a complete sentence. But I decided to take leave. It is also independent sentence. Then these इस तरह है जो दो sentence ने, दो independent clauses ने, ये दो में so conjunction नाल जुड़े हुए हैं, योजक नाल जुड़े हैं, समान योजक नाल। I am not feeling well so I decided to take leave. मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा, इस करके मैं डिसाइड किया छुट्टी लैन दा। नैक्सट सेंटेंस, द CBSE हैज़ अनाउंस द रिजल्ट्स। सेंटेंस एंड्स, इत्थे सेंटेंस एंड होंदा है। जो CBSE है उसने रिजल्ट अनाउंस कर दिते हैं, कंप्लीट सेंटेंस है। परंतु जो किसी कंपाउंड सेंटेंस आता है फिर एक जो कंप्लीट सेंटेंस है क्लाउजेज यानी वाक्यांश बन जाते हैं। नैक्सट ये नाल जुड़दा क्लाउज है I have scored the good marks, यानी मैनू उस विच अच्छे मार्क्स मिले ने। हुण जो इन्हां दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस या क्लाउजेस नू, सेंटेंस का मतलब है पूरा सेंटेंस एक मैसेज, क्लाउजेस का मतलब है जो एक वड्डे सेंटेंस विच दो या दो तो ज़्यादा वाक्यांश यानी कोई छोटे वाक उपवाक यानी छोटे सेंटेंस जुड़े हैं उसनू असी क्लाउजेस का नाम दे दें। इस विच द CBSE हैज़ अनाउंसड द रिजल्ट एंड आई हैव स्कोर्ड द गुड मार्क्स। इस विच लिखा है भी CBSE ने रिजल्ट अनाउंस करते हैं और मैनू अच्छे नंबर मिले। नैक्सट जो कंपाउंड सेंटेंस है, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, तेनू अपना काम होमवर्क करना पेगा, और यू विल गेट ए पनिशमेंट, या फिर तेनू पनिशमेंट मिलेगी। इस विच दो डिफरेंट वाक्यांश है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूजे तो अलग करके काम चल सकता है। जो दोनों सेंटेंस नू बराबर दे सेंटेंस यानी वाक्यांश नू या अधीन वाकां नू या फिर क्लाउजेस नू जोड़ दिंदे आ, एक सेंटेंस एक मीनिंग एक मैसेज एक फैक्ट और एक ओपीनियन बन जाता है। नैक्सट है, माई फादर लाइक्स टू रीड न्यूज़पेपर, मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं, पर बट माई मदर लाइक्स रीडिंग नॉवल्स, पर मेरी माँ नू मेरी माता जी नू नॉवल्स पढ़ना पसंद है। हुण इत्थे दो मैसेजेस है और दो मैसेजेस नू फिर कंजंक्शन बट और एंड और सो इन्हां नाल जोड़िया है। ऐसी साडा कंप्लीट असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिहड़े कि बेस ने फंक्शन के उत्ते जिद्दां असीं फॉर्म्स के उत्ते कीते सी भी एक सिंपल सेंटेंस है, एक कंपाउंड है, एक कॉम्पलैक्स है, जिहड़े असीं डिटेल विच अगे करांगे। इसका जो सैकेंड पार्ट सी द सेंटेंसिस काइंड ऑफ सेंटेंसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, उस असर्टिव किया, असर्टिव सिंपल किया और फिर कंपाउंड यानी दो जुड़े हुए योजक नाल जुड़े हुए सेंटेंसिस बारे असीं गल कीती। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸਰਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਡਿਕਲੇਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਸ ਬਾਲ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਆਫ ਰਬਰ, ਇਹ ਜੋ ਬਾਲ ਹੈ ਇਹ ਰਬੜ ਦੀ ਬਣੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਡ ਆਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मेड ऑफ है भी जो कोई चीज़ इक्को चीज़ की बनी होंगी है उदों असीं मेड ऑफ कहने। एक है मेड अप ऑफ, जो मेड अप लगता है मतलब जिदा कोई घर है वो शीशे नाल लकड़ी नाल इट्टां नाल सीमेंट नाल यानी एक चीज़ बनने में कितने सारे कंपोनेंट एलीमेंट्स लगे है वो फिर कहते हैं मेड अप ऑफ। इत्थे जो बॉल है कंप्लीटली तौर पर इक्को एलीमेंट की बनी है, दिस बॉल इज़ मेड ऑफ रबर, यह जो बॉल है रबड़ की बनी हुई है। यानी सिंपल मैसेज है, पॉजिटिव मैसेज है। आई एम गोइंग टू गुरुद्वारा, मैं गुरुद्वारा या टैंपल जा रहे हैं, इस सिंपल एक मैसेज है, पॉजिटिव मैसेज है, नेगेटिव नहीं है। दूसरी गल है आई रीड इन क्लास सो एंड सो, यानी मैं 7th क्लास पढ़दी हाँ, सिंपल सेंटेंस है। नैक्सट है इट विल बी हॉट टूडे, यानी अज का जो दिन है वो गर्म होने वाला है। इन्हां सारे सेंटेंसिस सारिया पॉजिटिव गल्लां इस करके एफर्मेटिव सेंटेंस है। नैक्सट गल आती है नैगेटिव सेंटेंस, these sentences tell us something is not so, यानी कोई चीज़ यदि नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल यह जो नैगेटिव सेंटेंस है, जो डिक्लेरेटिव या सिंपल सेंटेंस का हिस्सा है, इस नो, नॉट, नैवर, इज नॉट यह जो वर्ड्स है यूज होंगे हैं। आई डू नॉट हैव फ्री टाइम टूडे, मेरे को अज फ्री टाइम नहीं है, इतने नॉट वर्ड आ गया, नैगेटिव हो गया। इट इज़ नॉट गुड टाइम फॉर शॉपिंग, यह जो दिन है यह शॉपिंग करने बेस्ट नहीं है, अच्छा नहीं है। फादर डज नॉट, हुण एक सेंटेंस और आएगा, एक नुकता हो रहेगा भी डू कदों लगता है, डज कदों लगता है, इसकी गल असी नैक्सट वीडियोज़ वगैरह च करांगे। फादर डज नॉट कंप्लीट हिज टास्क, भी जो पिता जी है अपना काम पूरा नहीं करते, यह उन्हों की आदत है। वी शुड नैवर हार्म द नेचर, सानू कदे भी नैवर यानी कदे भी नेचर नू हार्म यानी नुकसान नहीं करना चाहिए। दो तरह के डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, नैगेटिव का मतलब जिस विच नैगेटिव वर्ड्स जिस तरह नो, नॉट, नैवर, इस तरह के होर बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, तुहानू यह छोटा जिहा जतन इंग्लिश ईजी इंग्लिश करन दा किस तरह का लगा। यह जो वीडियोज़ है यह छोटे बच्चों के लैवल तो थोड़ा हट के थोड़ा उपर है, तां जो साडे वर्गे लोगों नू इंग्लिश के जो बेसिक है उसकी समझ आ सके। अगे आने वाले वीडियो च असी टेंसिस की भी गल करांगे, सेंटेंस मेकिंग की ट्रांसलेशन की भी गल करांगे। मेरी रिक्वेस्ट है तुसीं साडे चैनल नाल इस तरह जुड़े रहो, अपने सजैशन देंदे रहो, साडियां वीडियो शेयर करते रहो। वीडियो शेयर करने तो पहला तुसीं साडे इस चैनल नू लर्न पंजाबी विद जगजीत सर जरूर सबसक्राइब करो, बैल आइकन दबाओ, तां जो आने वाली वीडियोज़ होर जो इंग्लिश ईजी इंग्लिश दी वीडियोज़ ने वो तुहाडे तक पहुँच सकन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।